Welcome class 11. Today we are going to start a new chapter, that is lesson number 6, directors and key managerial personnel of a company. As you know, personnel means employees. Students, in this chapter we will learn the meaning of directors, what is the dean, what are the importance of dean. Thereafter, we will also learn the types, power, liabilities, and remuneration, salary, and what are the rules, what are the terms and conditions of appointment of the directors, qualification, the process of appointment, what are the duties of the directors, legal position, and what are the reasons for the removal of the directors. Okay, now thereafter we will also learn the key managerial personnel. हु आर द की मैनेजर पर्सनल मीन्स कंपनी के कौन से बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. दे आर दी managing director. In there include the different kinds of the director like the account directors, regional directors, store director, technical directors, marketing directors. Okay, CS. So these all include in the KMP. ये सारे KMP में include होते हैं. Okay, now thereafter we will learn the different kinds of directors, their appointment, duties, rights. Okay, so let's start with the introduction. As we have already learned that company has a unique feature of separate ownership and management, whereby shareholder are its owner and director are its manager. जैसा कि हमें पता है कि कंपनी का एक बहुत ही सबसे अलग और एक स्पेशल फीचर है कि कंपनी की ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों डिफरेंस है. मीन्स ओनरशिप, द कंपनी की जो ओनरशिप है, इट इज़ द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर. ये किसके हाथ में है? इन हैंड ऑफ द शेयर होल्डर. बट द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कैन नॉट मैनेज द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉट एवर द बिजनेस आर गोइंग इन द कंपनी में जो भी बिजनेस हो रहे हैं उसको कंपनी के शेयर होल्डर मैनेज नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज देयर क्वांटिटी आर वेरी लार्ज. द शेयर होल्डर्स क्वांटिटी आर वेरी लार्ज एंड दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री और वर्ल्ड. ये सब जगह क्या है? फैले हुए रहते हैं. सो दे कैन नॉट मैनेज द कंपनी. ये कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते. ओके, सो फॉर मैनेजिंग द कंपनी दे अपॉइंट द टीम ऑफ द डायरेक्टर्स. कंपनी को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए उन्होंने क्या किया है? डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है. सो एज वी नो देयर हैज़ द सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. वाई? बिकॉज द शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी बट मैनेजर आर डिफरेंट. इट इज मैनेज बाय द डायरेक्टर who are the manager of the company. The directors are appointed by the shareholder. The shareholder represent the directors. Shareholder क्या करते हैं? They choose the one representative from them. मीन्स शेयर होल्डर्स में से वो क्या करते हैं? एक तरह एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं जो उनका डायरेक्टर होता है. ऐसे ही बहुत सारे डायरेक्टर्स वो सिलेक्ट करते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पज. एंड दैट इज कलेक्टिवली नोन एज द बोर्ड. उसे कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? बोर्ड. Also, as an artificial person, it needs a human agency to manage, control its working and day-to-day affairs. Yes, the company is also the artificial person. It need to manage, control its working and day-to-day affairs. कंपनी को मैनेज करना, उसमें कंट्रोल रखना वर्किंग का. देर आफ्टर जो उसके डे टू डे जो एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी, उसको प्रॉपरली कंट्रोल करना, प्रॉपरली सुपरवाइज करना, गाइड करना. दिस इज द वर्क ऑफ द डायरेक्टर, और वी कैन सी द मैनेजिंग डायरेक्टर्स. So there has the following reason which leads to the separation of ownership and management in company. There has the some reasons as given below which specify why the separation of ownership and the management are different. Now see,
It is large business organization having vast scope of business. Yes, company is the large business organization. They has the large business organization and it have a very vast scope, means बहुत ज़्यादा ह्यूज स्कोप है बिजनेस का. Large number of shareholder who are scattered all over and thereby management of company by them is impractical because the shareholder of the company are scattered. They cannot collectively manage the company. So for that they select a representative from them to manage the company because shareholders are unable to manage the company impractical. Third reason is given disinterest on part of most of the shareholder to manage such a huge organization because shareholders are showing a disinterest on the part of the कंपनी के कुछ पार्ट में शेयरहोल्डर क्या दिखाते हैं, डिसइंटरेस्ट दिखाते हैं. सो दैट्स वाई टू मैनेज द कंपनी देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ another management because shareholders are can't manage the company. वो कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते. Fourth, incapability in terms of qualification and inability on part of most of the shareholders to manage company. As I explain you, disinterest on part of the most of the shareholder to manage such a huge organization because it is a huge organization, so shareholders are showing disinterest to manage the ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए शेयर होल्डर्स क्या दिखाते हैं, डिसइंटरेस्ट दिखाते हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन. सो लाइक दैट ईच एंड एवरी शेयर होल्डर्स दे हैज़ द लिमिटेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन. सारे शेयर होल्डर्स क्वालिफाइड हो या एबिलिटी उनके अंदर एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो, ये पॉसिबल नहीं है. सो दे हैज़ अ लिमिटेशन ऑफ द कैपेबिलिटीज, एबिलिटी, क्वालिफिकेशन टू मैनेज द कंपनी को मैनेज करने के लिए दे नीड अ क्वालिफिकेशन, दे नीड अ प्रॉपर एबिलिटी, कैपेबिलिटी, दे नीड द इंटेलिजेंसी टू मैनेज द कंपनी. उनके अंदर वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए. बट शेयर होल्डर में सारे जो शेयर होल्डर है उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है. सो इनकैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, कैपेबल नहीं है, उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास, उतनी एबिलिटी नहीं है जिससे वो कंपनी को मैनेज कर सके. सो दैट्स वाई इट लीड टू द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन द कंपनी. Company as an artificial person having no physical existence needs human being to look after its functioning and day-to-day activities. Yes, company क्या है? It is an artificial person. So company cannot see own self. कंपनी खुद के सेल्फ से नहीं देख सकती. कंपनी कैन नॉट मैनेज विद ओन द डे टू डे फंक्शन और एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी. कंपनी कैन नॉट हैंडल द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. So company need a human being to look after all the function, all the working which are going और which are, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंपनी में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उनको प्रॉपरली उनको गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी बिकॉज कंपनी इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन. They have no any physical existence. So, in any other case, shareholder as owner would have fulfilled this duty, but we have already discussed the reason why they cannot. तो कुछ केसेस में क्या है, शेयर होल्डर क्या है, ओनर तो है कंपनी के और वो अपनी जो उनकी ड्यूटी होती है इन रिगार्ड ऑफ द ओनर वो उसे फुलफिल भी करते हैं, बट वो मैनेज नहीं कर सकते. ये हमने अभी पढ़ लिया. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज कुछ रीजन्स हमने पढ़े. बिकॉज शेयर होल्डर्स क्या हैं, वो स्कैटर्ड है, दे हैव लिमिटेशन ऑफ द क्वालिफिकेशंस. ओके, एंड बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो इन सम पार्ट ऑफ द बिजनेस दे शोज देयर डिसइंटरेस्ट. सो फॉर दैट ये रीजन्स है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ओनर तो हैं बट मैनेजर नहीं है, दे कैन नॉट मैनेज.
So company need a setup or structure to manage and organize its activity. So for managing the activity of an organization, to manage or organize the activity, management affairs, so they need a setup or structure. उनको एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी. फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ गिवन द वन हायरकी ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट. क्या स्ट्रक्चर है? शेयर होल्डर हु कंट्रीब्यूट द कैपिटल फॉर द कंपनी, जो कंपनी के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं. सो दे आर द शेयर होल्डर, दे आर द ओनर बेसिकली ऑफ द कंपनी. द शेयर होल्डर सिलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव and it is collectively known as the board of directors. You can see there. And the board of directors, again they select the some representative. They are the managing directors. वो क्या करते हैं? कुछ रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं. अब मैनेजिंग डायरेक्टर एक नहीं होते, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग टीम बनाई जाती है. लाइक यू कैन सी देयर द CFO. It is the chief executive officer. Sorry, CEO. Managing director means CEO, chief executive director. Thereafter the CFO. CFO means chief financial officer. Okay. Who see the work of the accounts, profit and loss accounts, what are the financial position of the account, ये सब कौन देखेगा? CFO. Then COO, ही इज़ द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. कौन है वो? चीफ ऑपरेटिंग, ऑपरेट करेगा रीजनल लेवल पे. CLO, चीफ लॉ ऑफिसर, हु वर्क फॉर द स्टोर्स. CTO, इट वर्क एज अ टेक्निकल मैनेजमेंट, टेक्निकली मैनेज करेगा कंपनी को. ओके. चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इट कंसिडर्ड. Thereafter the CMO, it is considered the chief marketing officer. CS, company secretary, जो कंपनी का सेक्रेटरी होगा. हमको कंपनी सेक्रेटरी पता ही है. ही इज़ द वेरी कॉन्फिडेंशियल पर्सन फॉर द कंपनी. ओके. इट्स टॉप लेवल मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच इज ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स. मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट. They are the group of directors. As I told you, the shareholder select their representative as a director, and they select the more than one directors, and that directors collectively known as the board of directors. They are the group of directors. Guys, अभी directors क्या होते हैं? As per section 234 of director means a director appointed to the board of company. डायरेक्टर कौन होते हैं? जो बोर्ड के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जो बोर्ड के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, दैट इज़ द डायरेक्टर्स. मीन्स सिंपली बताएं कि जो डायरेक्टर है दे आर अ पर्सन हु अपॉइंटेड टू मैनेज, कंट्रोल, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर वो पर्सन है जो शेयर होल्डर या फिर कंपनी का ओनर अपॉइंट करेगा. क्या करने के लिए? कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए, कंपनी की देखभाल करने के लिए, कंपनी को एक गाइडेंस देने के लिए, कंपनी को सुपरवाइज करने के लिए. जो भी कंपनी के डे टू डे अफेयर्स हैं, जो मैनेजमेंट अफेयर्स हैं, उनको प्रॉपरली कंपनी परफॉर्म करती है कि नहीं, जो उसका फंक्शन चल रहा है उसको कंपनी प्रॉपरली फंक्शन को परफॉर्म कर रही है कि नहीं. टू लुक आफ्टर दैट ऑल एक्टिविटीज़, उसके लिए कंपनी क्या करती है? अपॉइंट करती है जिस पर्सन को. इट इज़ नोन एज द directors. Now guys, you can see they have the 6.1.2, that is the provisions and rules with respect to appointment of directors, that we will see in next lecture. So आज के लिए इतना ही. Goodbye.